A very good morning, students, and welcome to e-learning classes of business studies. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 14, we covered the case studies of chapter number 3, business environment, and with that, the chapter was over. Now, in this lecture, that is lecture number 15, we are going to start your chapter number 4, that is planning. Before we proceed further, first of all, we should know what is the meaning of planning. प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन. मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो हम जहाँ पे आज खड़े हैं और जहाँ हमें पहुँचना है उसके बीच का जो ट्रैवलिंग गैप है दैट इज़ द प्लानिंग, राइट. एक्चुअल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो गैपिंग है दैट इज़ प्लानिंग. प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन काम को करेगा, काम कैसे होगा, काम कब होगा और काम क्यों होगा. ऑल दीज क्वेश्चंस आर आंसर अंडर द टर्म प्लानिंग. लेट्स हैव अ लुक ऑन फीचर, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या है. नंबर 1, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव. यस, विदाउट ऑब्जेक्टिव नो प्लानिंग इज डिटरमाइंड. कोई भी प्लानिंग बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं होती है. पहले हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं टू हैव दी प्लानिंग. प्लानिंग में मेथड्स, प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं किस मेथड से काम करना है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, कितने स्टेप्स लेने हैं, व्हाट आर दी अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ऑल दिस इज डिसाइडेड अंडर दी प्लानिंग फीचर्स. Number 2, planning is a primary function of management. As we know that there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. And in this, planning is the foremost and primary function of management which every manager has to perform. Without planning, no other function can exist. बिना planning के और कोई function नहीं हो सकता. Pervasive का मतलब होता है universal. Means planning is acceptable everywhere, whether we are talking to top level managements, whether we are talking to lower level, whether we are talking to middle level. At every level, planning is the foremost requirement. 4th, planning is futuristic, forward looking. I told you in the meaning only that planning is futuristic means हम present में रह के future का सोचते हैं. हम इस टाइम पे सोचते हैं कि हमारी कंपनी कैसे ग्रो करे. हम इस टाइम पे सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना ज़्यादा होना चाहिए. सो इन प्रेजेंट टाइम वी आर थिंकिंग फॉर द फ्यूचर. दैट्स व्हाई प्लानिंग इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग. प्लानिंग इज कंटिन्यूस. कंटिन्यूस का मतलब क्या है? इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. अगर आपको ये लगता है कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल इफ यू हैव डन द प्लानिंग सो यू कैन टेक द रेस्ट ऑफ 2-3 months, so you are wrong in that. Planning is a continuous process. You have to plan for next event and next event. Next, planning involves decision making. Planning क्या करता है? It involves decision making. Means जब तक planning नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज़ के लिए decision नहीं ले सकते. So when you need to have planning, you have to be for the decisions as well. Planning is a mental exercise. Exactly. Until and unless you will not give stress on your mental level to think for the objective, to think for the betterment of the organization, then you can't have the planning. So, some short, planning is a mental exercise. So, these all are the features of planning, that it is a continuous process, it is pervasive in nature, it is a mental exercise, it is futuristic. I hope so that you are clear with the features of planning. Now, let's have a look on importance of planning. ये आपकी बेटा प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है. नंबर 1, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. एग्जैक्टली, वेरी ट्रू. विदाउट प्लानिंग नो डायरेक्शन कैन बी अचीव्ड. Direction is always provided by the planning. Why? Because planning makes us think that what to do, how to do, for whom to do. Right? Next, planning reduce the risk of uncertainties. बिल्कुल सिंपल सी बात है. अगर हम किसी चीज़ के लिए पहले से प्री प्लान्ड होते हैं then we are having the less risk of uncertainties. अनसर्टेनिटीज़ तभी ओरिजिनेट होती हैं जब हम प्लान तरीके से वर्क नहीं करते. एंड व्हेन वी स्टार्ट डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग, सो अनसर्टेनिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है. प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. अगर प्लानिंग हमने की है तो कोई भी वर्क हम 2 बार नहीं करेंगे. वी विल नॉट डू द ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हम नहीं करेंगे. नो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कैन बी डन, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क कैन बी डन व्हेन प्लानिंग इज देयर. प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़.
प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है, मीन्स कितना ज़्यादा इनिशिएटिव, कितना इनोवेटिव आप हो सकते हैं, दैट इज ऑल डिसाइडेड अंडर द हेडिंग ऑफ प्लानिंग ओनली. नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. येस, इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग दैट वी कैन टेक द डिसीजंस. जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो सब डिसीजंस प्लानिंग की हेल्प से ही लिए जाते हैं. प्लानिंग हमें एडवांस में तैयार करता है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए कि व्हाट इज़ द फ्यूचर, हमारे इन प्रोडक्ट्स को लेकर कैसा फ्यूचर हो सकता है, दैट इज़ ऑल बाय द प्लानिंग. प्लानिंग इस्टेब्लिशेज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. येस, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? प्लान्ड और एक्चुअल आउटपुट के बीच में वेरिएशन देखना, और उस वेरिएशन के लिए स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है? ओनली प्लानिंग. If you will plan for 90%, then you can achieve 80%. But if you are planning for 70%, it's not possible for you to achieve 80%. So standards or goal are being set by planning only. Then planning focuses on objectives of the company. Yes. It is the one of the importance of planning, that it always gives attention on objective of the company. कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्लानिंग का फोकस, प्लानिंग का अटेंशन हमेशा इसी बात पे रहता है, राइट. प्लानिंग फंक्शन बिगिंस विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग फंक्शन शुरू कहाँ से होता है? ऑब्जेक्टिव को सेट करना, पॉलिसीज़ बनाना, प्रोसीजर्स देखना, मेथड्स देखना और रूल्स देखना, विच आर मेड इन प्लानिंग टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स. और प्लानिंग में ही ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं. सो आई थिंक आई एम क्लियर विद द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, आई एम क्लियर विद द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग एज वेल एज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे बेटा. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. थैंक यू.